Hello, dear students. I hope you all will be fit and fine and ready to class. In this class, we are going to start the Solve Paper series for Physical Education UGC NET. In order to continue this series, by today onward, we will start the September 2013 Solve Paper. We will cover this paper in two parts. In first part, we will cover from question number 1 to 30, and second part 31 to 50. ओके सो चलिए फिर शुरू करेंगे. चलिए नेट लेट्स क्रैक द नेट. ओके द क्लास टाइमिंग आपको पता ही है कि ऑलरेडी वी हैव चेंज द क्लास टाइमिंग. नाउ यू विल गेट द क्लास इन 8 p.m. in the night. Okay, so part 1 we will start with question number first. Okay, so let's read out the question. To determine what is needed and who will do it in an important task of manager, technically it is known as. ये डिटरमाइन करना है कि important task of manager जो है वो क्या क्या होंगे. स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. सो लेट्स डिस्कस ऑन इट. जैसे हमने पहले भी जो पेपर सीरीज किए हैं बिफोर, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली फॉर organization and administration. Staffing is the part of administration. Organization इसको देखते हैं. लीडिंग ये किसका काम है? ये लीडर का काम है, तो इसमें मैनेजिंग में नहीं आएगा. ये कंट्रोलिंग ऑफ कोर्स फिर उस टॉप पार्ट नहीं है उसका मैनेजमेंट का, तो इसमें स्टाफिंग भी छोटा सा पार्ट है. मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग. क्यों? व्हाई? बिकॉज we are considering two things. Who will do it? Okay, it is important. The task of manager, it is an important task of a manager का important task को technically हम क्या कहेंगे? Organizing. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका सही हो जाएगा. Next question, the intramural and extramural are two important programs of physical education. Among them, intramural is. So you have already known that there are two kinds of physical activity usually done in order to prepare the students for various kinds of the sports and physical activities. They are intramural or extramural. If we talk about the intramural, those kind of the program, they usually done within a group or within a department. Extramural programs are those programs, they are play or the competition between two various groups. Okay, for example, there is a department at Aligarh Muslim University Physical Education. Then the programs will run under this department, will come under the category of intramural, till that it will not play between other department. Okay, so these kind of are recreative sport, competitive sports, are fitness sports and indigenous sports. So अब आप इसको देख लीजिए कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है कि इंटरम्यूरल प्रोग्राम जो था वो क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिक्रिएटिव स्पोर्ट्स हो जाएगा. कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, व्हाई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कैन नॉट बी द आंसर? कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इसलिए नहीं हो सकता कि कॉम्पिटिटिव जो होता है वो, अगर इसकी स्पिरिट को आप देखेंगे तो दो वेरियस ग्रुप्स होते हैं, उनमें जाके ये होता है. फिटनेस का प्रोग्राम, फिटनेस इसका सोल इंडिपेंडेंट नहीं है. इंडिजिनियस स्पोर्ट्स होता नहीं है, क्योंकि जब इंडिजीनियस ये किस में आएगा? ये ट्रेनिंग का पार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये इंट्राम्यूरल का पार्ट नहीं होगा. फिटनेस अपने आप में एक इंडिविजुअल स्किल है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्रिएटिव स्पोर्ट. उसमें सारे तरह के ऑल काइंड ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी और नॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटी विल बी परफॉर्म टू प्रिपेयर एन स्टूडेंट्स फॉर, especially for various kinds of the sports or competitions they may be play on various level. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज. अब इस यहाँ से जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, इन सारे क्वेश्चंस में मैं आपको टाइमिंग दूंगा. आप उन टाइमिंग के साथ क्वेश्चंस का आंसर लगाइए और लास्ट में मुझे you have to give the final report that how much question you have cracked down. Okay, right. In the field of human interaction, the essence of management is, your options are cooperation, coordination, coactions, coexistence. चलिए आंसर करिए.
here we are talking about the human interaction, essence of management. Okay, human interaction, essence of management। कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोएक्शन और कोएग्जिस्टेंस। आंसर करें। ओके, चलिए बहुत, हाँ वेल डन, बढ़िया। चलिए अब सारे आंसर्स को हम देखते हैं। कोऑपरेशंस मींस मतलब ऑपरेटिंग विद समवन, वी आर नॉट गोइंग फॉर फाइनल वन बट वी आर ऑपरेटिंग टू सपोर्टिंग समवन। तो ये आंसर यहाँ पे खराब हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप, इफ यू आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट यू हैव टू डील विद डायरेक्ट। ओके, सो कोऑर्डिनेशन मतलब, कोऑर्डिनेशन मतलब सही आंसर है। चलिए लेकिन आगे भी देख लेते हैं। कोएक्शंस, कोएक्शंस मतलब मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होंगे, ये लोअर लेवल के पार्ट में चले जाएंगे। ऐसे ही कोएग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी आंसर जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आइजेनिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी मीजर्स। इसेक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी मीजर्स। अब ये क्या होते हैं, ओनली वन डायमेंशनल ऑफ पर्सनैलिटी, ओनली टू डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, ओनली फोर डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, ऑल डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। चलिए आंसर करें आप। आपको ये याद रखना है कि हमें किसके रेफरेंस में करना है ये, इजैक्ट पर्सनैलिटी और इन्वेंटरी मेजर्स उसके देखने हैं कि कितने डायमेंशंस उसके अनुसार जो है वो पर्सनैलिटी के डायमेंशन कितने होते हैं। बताइए आप। चलिए चलिए, ये एक तरह से फैक्ट टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, ओनली टू डायमेंशनल ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। वो आप समझ लीजिए ताकि अगर अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी अलग से, अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, दैट टाइम यू हैव टू माइंड दैट दिस कॉन्सेप्ट सो दैट यू कुड find out the answer of other question. तो Isaac personal inventory EPI, usually if you got this word like EPI तो आप इससे भी आप Isaac personality inventory आप समझ लीजिए। सेल्फ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन मतलब ये सेल्फ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन, इसमें 57 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें यस और नो में आपको आंसर देना होता है जो लाई स्केल पे होते हैं। इसमें पर्सनैलिटी की जो सेंट्रल डायमेंशंस होती है वो क्या होती हैं, दो होती हैं। वो कौन सी होती है, एक्सट्रावर्जन और न्यूरोटिज्म। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिज्म। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, योर आंसर विल बी ओनली टू डायमेंशनल ऑफ पर्सनैलिटी। ये सितंबर 2013 का पेपर जो है, 2013 का पेपर ऑफ यूजीसी नेट फॉर फिजिकल एजुकेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला और थोड़ा सा फैक्ट इसमें देख लीजिए कि जो इजैक की थ्योरी थी पर्सनैलिटी की, वो बेस्ड ऑन थ्री डायमेंशंस उसमें थी, जिसमें अलग अलग क्या किया गया था, अलग अलग उनको तीन ऑपोजिट काइंड ऑफ एंटोनिम्स या सिनोनिम्स टाइप की चीजें जो आप कह सकते हैं, उसमें उन्होंने उसको मतलब डिस्क्राइब किया था। तो वो क्या थी, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, और साइटोसिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन। तो आप इन तीनों चीजों को भी याद रखेंगे। आई होप दैट कि इन वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन यू विल गेट हेल्प विद दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रोजक एट ऑल 1963 द इक्वेशन ऑफ कंप्यूटिंग बॉडी फैट परसेंटेज फ्रॉम बॉडी डेंसिटी इज। चलिए, तो सबसे पहले while you are going to solve this question you need to know what the body density is. So first of all आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होनी चाहिए कि बॉडी डेंसिटी जो है वो क्या है। जब आप बॉडी डेंसिटी समझ पाएंगे फिर उसके बाद में आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शंस आप ले लीजिए। इसके ऑप्शंस हैं फैट परसेंटेज इज इक्वल टू 2.39 डिवाइडेड बाई 1.57 मल्टीप्लाइड बाई बॉडी डेंसिटी माइनस 4.19 इंटू 100। Option B, fat percentage is equal to 4.57 divided by body density within bracket minus 5.142 multiplied by 100। ऐसे ही आपका C ऑप्शन है और D ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आप आंसर करें।
ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इनके आंसर्स कर सकते हैं, आप करिए आंसर्स। अब इसमें भी वैसे में मुझे कहीं भी लगेगा, इफ एनी टाइम आई विल फील दैट आई शुड गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वन, डेफिनेटली आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। तो इसको आप फैक्ट टाइप में इसको याद कर लीजिए कि जो ब्रोजेक एट ऑल ने इक्वेशन दिया था फैट कंपटीशन का, वो क्या था? फैट परसेंटेज इज इक्वल टू 4.57 माइनस बॉडी डेंसिटी डिवाइडेड माइनस 4.142 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 4.57 है यहाँ पे 4.142 है। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिए कि 4 आता है और बॉडी डेंसिटी को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ओके, तो बॉडी डेंसिटी आप थोड़ी सी देख लीजिए। जो डेंसोमेट्रिक मेथड्स यूटिलाइज किए जाते हैं किसके लिए? बॉडी डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, बॉडी मास को डिवाइड कर देते हैं किससे? वॉल्यूम से। वैसे भी आपका जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को बेसिकली हम क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? एम अपॉन क्या होता है? एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझ लीजिए इसके बारे में। द बॉडी डेंसिटी इज यूज टू एस्टिमेट फैट फ्री मास, फैट मास एंड परसेंटेज बॉडी फैट यूजिंग कन्वर्जन फॉर्मूला। थोड़ा सा और आप इसको देख लें, मुझे लगा उचित कि ये चीज मुझे आपको बतानी चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आई होप दैट यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। द मोस्ट मॉडर्न बॉडी कंपोजिशन लैबोरेटरी इज यूज द वैल्यू ऑफ 1.1 किलोग्राम पर लीटर for density of the fat-free mass. Theoretical tissues composed of 75%, 72% water density 0.993 or 21% protein, in that 21% protein that having the density of 1.340 and 7% mineral density is 3.000। तो आप इसका ध्यान रखें, आप बहुत ही केयरफुली इस स्टेटमेंट को एक तरह से नोट कर लीजिए अपने पास, ताकि 1.1 किलोग्राम पर किलोग्राम लीटर के हिसाब से अगर हम डेंसिटी देखेंगे तो फैट फ्री मास के लिए क्या होगा? 72% क्या है? वाटर, जिसकी वाटर की डेंसिटी कितनी है? 0.093। 21% कंसिस्ट करता है किसको? प्रोटीन, और इसकी डेंसिटी कितनी दिखाई हुई है? 1.340 और 7% मिनरल्स, जिनके लिए 3.0022। हाइयर डेंसिटी अगर देखी जाएगी तो किसकी आएगी? मिनरल्स की, आप ध्यान रखिए। और उससे कम जो डेंसिटी आएगी वो किसकी होगी? प्रोटीन की। और सबसे कम डेंसिटी will be water. So next question we will solve. A variable that is responsible for bringing about a change is called. Options are controlled variable, dependent variable, independent variable, and constant variable. There are various kind of the variables are here in various kinds of the research. तो उसमें से जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपके पास आंसर्स हैं, आप आंसर करें। कंट्रोल्ड वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या कांस्टेंट वेरिएबल है? चलिए करिए, आंसर करें। बढ़िया, बहुत अच्छे। शशांक, वेरी गुड बेटा। दिनेश, रोहित, बहुत अच्छे। चलिए अब इन सब आंसर्स को देख लेते हैं, बाकी फिर हम सही आंसर जो होगा उसको भी देखेंगे बाद में। तो जो भी सही आंसर होगा उसको हम बाद में टेक करेंगे। द कंट्रोल्ड वेरिएबल आर दोज काइंड ऑफ द वेरिएबल टू whom वी कैन कंट्रोल व्हाइल वी आर कंडक्टिंग द रिसर्च। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल कौन से होते हैं? वो वेरिएबल होंगे जिनको हम जब रिसर्च एनालिसिस कर रहे हैं वेरियस मेथड से, तो हम उनको कंट्रोल करके रख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने एक फिजिकल एक्टिविटी में V2 max की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और वहां हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट किया हुआ है, रूम टेम्परेचर, जिसमें रूम टेम्परेचर 26 डिग्री है। तो जो 20 टी, अगर हमने क्या किया, हमने टी को कितना कर लिया? टी को हमने कर लिया है 26, ठीक है। तो जो 26 डिग्री फिक्स किया हुआ है हमने, दैट इज कंट्रोल्ड वेरिएबल फॉर टेम्परेचर, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि एक वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज डिपेंड ऑन अदर वन, इफ समथिंग विल चेंज दैट वेरिएबल विल ऑटोमेटिकली चेंज। लाइक जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे
तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर के साथ जो डेंसिटी का है वो रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगी। तो अच्छा खाना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम खाना खाएं उससे खाने पे फर्क नहीं पड़ेगा, खाना खाने से हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हेल्थ होगी वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। खाना क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल जैसे मतलब सार्वत्रिक, वो हर जगह फिक्स रहे। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जी जो है, उसको अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल्ड वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल में क्या फर्क रहता है? कांस्टेंट वेरिएबल ये रहेगा कि कांस्टेंट वेरिएबल एक तरह से आपने कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, अब उससे हम छेड़खानी नहीं करेंगे बिल्कुल। लेकिन कंट्रोल्ड वेरिएबल में क्या है कि हमें जहां पे लगता है कि उसको कम करना है, टेम्परेचर को हम कम कर लेंगे, ज्यादा करना है ज्यादा कर लेंगे। तो कंट्रोल्ड वेरिएबल प्रोवाइड अस द फैसिलिटी टू वेरी, ओके। बट कांस्टेंट वेरिएबल once fixed it will not change entire by the course of टोटल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज, जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें चेंज होता है वो नहीं, जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज कोरिलेशन रेंज बिटवीन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और नेट का शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें कि बेटा आपको इससे क्वेश्चन नहीं मिले। इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। इसके बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट इन कमिंग एग्जामिनेशन यू विल बी गेट द राइट आंसर ऑफ इट। चलिए फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फिलहाल आपको रेंज दे देता हूँ, 0.00 to 1, -1 to 00, 1 to 0, -1 to +1। चलिए आंसर करें। एक तो ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दैट कि सबको आंसर इसका मालूम ही होगा, ठीक है। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलिए सबका सबका सही आंसर है। चलिए बेहतर, अब इसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कि तो इसमें वैल्यू क्या होती है, ये -1 से +1 तक की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। अब आप इसको समझें थोड़ा सा, बहुत अच्छे से इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज फ्रॉम -1 to +1। -1 इंडिकेटिंग अ परफेक्ट लीनियर नेगेटिव, ठीक है, परफेक्ट लीनियर नेगेटिव, ठीक है। इस आप ये जो पूरा जो स्टेटमेंट है इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। -1 इंडिकेटिंग परफेक्ट लीनियर नेगेटिव, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए कि परफेक्ट लीनियर नेगेटिव इस तरह से ये आएगी इधर की साइड में, ठीक है। लीनियर पॉजिटिव जाएगी तो इधर की साइड समझ लीजिए आप ऐसे करके, ठीक है। फिर ये ऐसे करके इधर चलता है, ये माइनस इधर रहता है और इधर आपका प्लस रहता है। यहाँ ये समझ लीजिए 0 और न्यूट्रल रहता है, ठीक है। परफेक्ट और प्लस में अगर आप देखेंगे तो प्लस इंडिकेटिंग द परफेक्ट लीनियर पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है। स्लोपिंग अपवर्ड एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड जो है वो भी दोनों चीजें आप याद रखेंगे। तो यहाँ स्लोपिंग अपवर्ड दिखा है। स्लोपिंग डाउनवर्ड क्या होता है, इधर से ये यहाँ से नीचे की तरफ इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ स्लोपिंग अपवर्ड ये ऐसे करके ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इन चीजों को भी दोनों को आप ध्यान रखें जब हम when we will talk about +1 indicating means perfectly positive correlation with sloping upward, ठीक है। स्लोपिंग अपवर्ड मींस ऊपर की तरफ स्लोप बना रहा है। स्लोप का मतलब क्या होता है, देयर इज ए एंगल फ्रॉम बेस लाइन हियर। कुछ इस तरह से आप देखिए कि ये जो है ये आपका पहाड़ है एक तरह से, ठीक है ये, और यहाँ पे ये एक एंगल जो बन रहा है दैट इज स्लोप, ठीक है। द एंगल फ्रॉम बेस लाइन दैट इज कॉल्ड स्लोप, ये क्या है आपका स्लोप है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसमें और भी फैक्ट्स जो हैं मैं चाहता हूं कि आप उनको भी बहुत अच्छी तरह से जान लें। तो क्लोज टू जीरो सजेस्ट द लिटिल इफ एनी कोरिलेशन। नेक्स्ट देखिए आप, ये क्या कहता है, द परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन मींस 100% ऑफ द टाइम। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है 100% ऑफ द टाइम। The variable is questions moves together extract from the same percentage in the direction and positive correlation
can be seen between demands for a product and the product associated price. Okay, next देखिए correlation coefficient whose magnitude are between 0.5 to 0.7 indicate varies which can be considered moderately correlated, and the correlation coefficient whose magnitude are between 0.3 to 0.5 indicate varies from low correlation. परेशान मत होइए, इसके लिए मैंने अलग एक टेबल दी हुई है आपको, तो उस टेबल से आप देखेंगे तो आपको पूरा एकदम याद आ जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पूरी थोड़ी कोशिश नहीं, पूरी कोशिश आपको करनी है। देखिए ये टेबल है, यहाँ से देखिए बहुत अच्छे से आप टेबल को देखते जाइए, आपको सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उस स्लोप जो स्लोप था उसको स्लोप कुछ ऐसे इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है? अभी देखिए जीरो पे क्या होता है, नो कोरिलेशन, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो डिमांड है, उसके बीच में कोई भी, मतलब प्रोडक्ट और डिमांड आप फिजिकल एजुकेशन के सेंस में देखना चाहते हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन के सेंस में देख लीजिए कि जो एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीएनएफ एक्सरसाइजेस है वो रिकवरी के लिए बहुत अच्छी है, तो पीएनएफ की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है? तो जीरो पे क्या है, कोई कोरिलेशन नहीं है। अब माइनस की तरफ हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे क्या होगा, अब 0.2 है माइनस में तो वेरी वीक, फिर वीक, सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्ग किस पे हो जाएगा, -1 पे। ऐसे ही आप पॉजिटिव में इधर की तरफ चलिए, ठीक है? तो 0.2 पे वेरी वीक, 0.4 पे वीक, सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग, +6 पे, 0.8 पे और फिर 1 पे वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखिए ये वर्क कैसे करते हैं, नेगेटिवली कोरिलेटेड। क्या करेंगे, अगर आपकी वैल्यू, इफ योर वैल्यू इज बिटवीन 0.01 टू 0.20 इज अ वेरी बिग नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब हमें पता है वेरी वीक नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। अब ये कोरिलेशन तो परफेक्ट है, तो कोरिलेशन परफेक्ट है तो हमें पता है हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग हियर that if one thing is will increase, another thing will decrease. There is a clear relation, so that it is good to be tradable. 0.2 to 0.4 is big correlation. Here it's clear that यहाँ तक भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि हो जाएगा। मतलब फिर धीमे धीमे जब मीडियम रेंज में आते हैं 0.4 से लेके 0.6 तक जाएंगे, माइनस में 0.6 से 0.8 तक जाएंगे तो फिर नेवर ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है इसमें कि एक कोरिलेशन नहीं बनता पूरी तरह से। जब करेक्ट कोरिलेशन नहीं बनेगा तो फिर हमें अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो और चाहे वो नेगेटिव में हो। तो जो वैल्यू ट्रेडेबल, अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अगर if somebody is giving you the question like that, if the negative correlation strength value is 0.01 to 0.04, is this good to execute the exercise for the betterment of the betterment of the player? ठीक है, कि अगर हम कोई एक्सरसाइज करा रहे हैं और उस एक्सरसाइज का जो कोरिलेशन स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो जो आपकी 0.01 से लेके 0.4 तक जा रही है माइनस में, ठीक है, तो हम क्या उसको ये कराएंगे या नहीं कराएंगे? तो वहां से आपको क्लियर पता चल जाएगी कि नहीं, इससे तो हमें घाटा हो रहा है, हम इसको नहीं कराएंगे, ठीक है? तो ट्रेडेबल है, हमें पता चल रही है, प्रेडिक्टेड है वैल्यू, ठीक है? ऐसे ही हम पॉजिटिव में देखेंगे, हियर फ्रॉम 0.01 to 0.02 positive, very big, okay, then weak is the same for the negative to positive, ठीक है? I hope that you will get the clear information here. There another one thing, if you got the graph like this, here the range, R is indication for the range, okay, negative correlation and for the positive correlation, and for perfect and plus correlation, perfect and correlation for +1, it means that it's giving the linear trade, okay? There is a clear cut in information is giving here, no disturbance at all, okay? Here you will see that all the data is falling on a single line, okay? So this is a clear cut data. Here you can predict the things on very good mode, you are safe here. But there are little bit difference because here it will give you a little bit problem to choose, okay? So strong plus association, here perfect plus correlation. So for value R
is equal to +1, give you the perfect plus correlation. Close to +1, it means that it will give you strong plus association. Same for -1, strong if even the linear line is a strong like this, okay, giving the linear line, strong plus association is a 0, weak or no association, means no prediction at all. Here you can see that all the data are scattered form. So scattered data cannot give you the good prediction. Okay, now you can assess the full range here. I have put the range so that clearly you can get the range from where is a high correlation, marked degree, moderate degree, low degree of correlation, and no and not eligible for it. Okay, so 0.8 or more than 1, this is the high correlation, here is safe to deal with, or 0.6 to 0.8 marked degree, 0.4 to 0.6 the moderate degree, and less than that it's not good, never trade on it. Okay, so now we will move on next question. The mode is the measure of central tendency and it is considered as, चलिए ये एक इजी क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत इस पे नहीं करनी है, अब आप लोगों का काम हो गया, आप लोग काम करिए इस पे. सो द वेरी फर्स्ट द आंसर इज एवरेज ऑफ द स्कोर, most frequently occurring score, value in the middle, sum of all scores. करें, आंसर करें, चलिए जल्दी से. ओके, बहुत अच्छे. So now we'll see that the average of scores means average of scores, that will be already an average. Okay, so this answer will not be, because we are going for the mode and mode is not the average. What is the value in the middle? No, उसको वैल्यू इन मिडिल को क्या बोलते हैं, मध्य का, तो वो भी नहीं होगी, ये भी आंसर खत्म हो गया. सम ऑफ ऑल स्कोर्स, ये तो हो ही नहीं सकता. एंड व्हाट इज द रिमेनिंग आंसर, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग. अच्छा, ये होता क्या है मोड में, मोड में यही होता है 2 3 5 4 2 3 5 4 2 1 2 2. so the most frequent value, the most repeating frequent value is called mode. Okay, so what will be the answer? Answer will be B. Very nice. The next question is the research where the investigator can manipulate treatment to cause their things happen. ये रिसर्च का क्वेश्चन है. आई होप दैट कि आपने रिसर्च को अच्छे से पढ़ी होगी. अगर आपने क्लियर कट नहीं पढ़ी है तो आंसर आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी जो आपके ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करने में, क्योंकि आंसर्स जो रखे हुए हैं इसमें क्लोजली रखे हुए हैं. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, आपके 4 ऑप्शंस हैं और आपको चूज करना है कोई एक ऑप्शन. चलिए करिए आप. क्वालिटेटिव आंसर रिसर्च होगा, एनालिटिकल होगा, एक्सपेरिमेंटल्स होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा. चलिए तो एलिमिनेट करना शुरू करेंगे. करें, लगा लिया आप लोगों ने आंसर? चलिए बहुत बेहतरीन. तो क्वालिटेटिव में देखिए रिसर्चर जो है ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैनिपुलेशन किसमें करना है, इन्वेस्टिगेटर जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है ट्रीटमेंट अपने हिसाब से. तो मैनिपुलेशन सिर्फ क्वालिटेटिव में आप नहीं कर सकते, एनालिटिक्स में भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डेटा पूरी तरह से कंपैरिजन होता है. आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी ऐसी तरह का आपका मैनिपुलेशन नहीं होगा. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही एक बचता है. इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम क्या करते हैं, सारे जो मैनिपुलेशंस वगैरह हैं वो कर सकते हैं. और मोस्ट ऑफ देखते हैं कि ज़्यादा क्वालिटेटिव जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो कम ही होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में. द वेरी फ्यू, because the invention or invent kind of the things they are happening with the qualitative research, but the most safe side, the people go with the experimental research, because you receive some kind of the data and you have to analyze the data on the behalf of giving some formula. You are just give your formula to some of the value and calculate the value and just go for the interpretation at all. So we'll move for next question. The cluster sampling is a type of proposal sampling, probability sampling, non-probability sampling and non-random sampling. चलिए करिए आंसर आप.
प्रोपोजिव सैम्पलिंग होगी, क्लस्टर टाइप्स जो सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो व्हेन वी वर डूइंग सम प्रीवियस, उससे पहले भी जो पेपर सीरीज हुई है उसमें मैंने आपको ये कराया हुआ है इसी तरह का एक क्वेश्चन, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्क्राइब किया था। तो बेसिकली सैम्पलिंग आर ऑफ टू टाइप इन ग्रॉस टर्मिनोलॉजी, दे आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं बड़ा अच्छे से, ठीक है। तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे से किया। चलिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो आंसर है। अब मैं आपको लिस्ट इसकी दे देता हूँ, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से इनको याद रखने पाए, ठीक है। चलिए तो आप इसको याद कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं, हम इसको रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रोबेबल, किसी अनुमान से कोई चीज लगाई और हमें ये है कि ये मतलब प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रायिकता है कि मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। अब वो ये जरूरी नहीं है कि जो हम मान रहे हैं वही होगा, क्यों भाई, सब कुछ तुम्हारी तरह से थोड़ा ना होगा, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी होता है यार। चलिए तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं लगाई जाती, इसमें फिक्स टाइप की, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब करते हैं ना, एकदम फिक्स चीजें हमारे कंट्रोल के हिसाब से होनी चाहिए। जजमेंटल, जैसे इसमें देखेंगे आपको जब मिलेंगे सिंपल रैंडम, बहुत साधारण तरीके से रैंडम। सिस्टमेटिक मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगा दिया कि हम रैंडम लेंगे लेकिन कुछ सिस्टम के साथ लेंगे। फिर स्ट्रेटिफाइड मतलब हम ऐसे स्ट्रेटा बना लेंगे और इस स्ट्रेटा में से फिर इसमें से चूज करेंगे, करेंगे रैंडम ही लेकिन बना जरूर लेंगे उसमें से। फिर क्लस्टर्स हमने कुछ तैयार कर लिए, ठीक है, हमने कुछ क्लस्टर्स तैयार कर लिए और उन क्लस्टर्स में से क्या होगा, अब हम क्लस्टर्स में से चूज करेंगे कि हमें कौन सा क्लस्टर जो है वो चूज कर लेना है अपने उसके हिसाब से। एरिया सैम्पलिंग, एक पर्टिकुलर एरिया हमने ले ली और उस एरिया में से फिर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करना शुरू करेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना सैंपल जो है वो निकालेंगे। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में भी यही होता है कि बड़ी एरिया को हम चूज करते हैं, फिर धीमे 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 करके हम एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए ये इसकी पूरी तरह से हम एक बार फिर स्टडी करेंगे जब हम रिसर्च पढ़ेंगे, और रिसर्च में हम खास तौर पे सैम्पलिंग पढ़ेंगे, तब इन सारी सैम्पलिंग्स को मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अभी यहाँ एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर हमारा ढेर सारा टाइम चला जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो, क्योंकि मेरी तबीयत भी आजकल सही नहीं है थोड़ी सी। आप लोग वैसे भी मतलब जो आवाज़ है उसके साथ तो कंप्रोमाइज़ कर ही रहे हैं, अब हर चीज़ में तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। चलिए बहुत अच्छे। सो ये क्वेश्चन जो है इसका, ये क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं पूरा करूंगा नहीं, मतलब कर भी दूंगा यार। चलो ठीक है, ये कह रहा है कि 40 years old man has resting heart rate of 75 beats per minute, maximum heart rate of 180 beats per minute. What will be his training heart rate at 60 degree 60% of intensity? मतलब आप इसको समझें पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझें कि 40 years old एक मैन है, उसकी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है, रेस्टिंग हार्ट रेट RHR, ठीक है। क्या है इसकी, आर एच RHR क्या है उसकी, ये आपकी RHR होगी 75, ठीक है, पर मिनट। मैक्सिमम हार्ट रेट उसकी कितनी है 180। मैक्सिमम तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, मैक्सिमम हार्ट रेट के लिए क्या करते हैं हम, जितनी एज होती है 220 में से उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 180 तो वैसे भी मिल गई हमें। व्हाट विल बी हिज ट्रेनिंग हार्ट रेट। अच्छा ट्रेनिंग हार्ट रेट से आप टारगेट हार्ट रेट निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे आप, टारगेट हार्ट रेट। टारगेट हार्ट रेट में आप क्या करेंगे, अब ये देखिए आपकी जो टारगेट हार्ट रेट है वो कितनी आ जाएगी, THR कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पे देखिए कितनी हो जाएगी आपकी, 180 है ये, ठीक है। 180 यहाँ दी हुई है ये पहले से ही, क्योंकि 180 220 माइनस 140 करेंगे तो 180 हो जाएगी। अब 180 में से आप देखिए कितना है, 180 में से 75 करिए, कितना हो जाएगा आपका, वो जितनी भी आ रही है उसका आप 65% निकाल दीजिए, ठीक है। और 65% जब आ जाएगी, फिर जितनी भी आती है उसमें आप क्या करिए, उसमें आप जोड़ दीजिए किसको, 75 को। आप उसमें 75 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 138 इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा।
इसके बाद भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो फिर मैं अलग से कमेंट्स बॉक्स में एक आंसर जो है इसका अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशन का, तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है इसमें, फिर दोबारा से एक बार समझ लीजिए। पहले आपको THR निकालना है इसमें, टारगेट हार्ट रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेर व्हाट यू विल डू, first of all you will go for the maximum heart rate that is given 180, then you will go for the target heart rate, THR is equal to 180 minus 75, 180 minus 75 कितना हो गया, 5 75, then 65, then 65 multiplied by 60% कितना आ जाएगा वो देख लीजिए, प्लस 75 और प्लस 63 हो जाएगा, 63 प्लस 75 कितना हो जाएंगे आपके 138। ठीक है, तो इसमें आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाई, मायोसिन फिलामेंट, अच्छा दो, देयर आर टू काइंड ऑफ फिलामेंट बेसिकली, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। अच्छा मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक्टिन फिलामेंट की स्पेलिंग थोड़ी छोटी है और देयर इज ए बिग स्पेलिंग ऑफ मायोसिन, सो मायोसिन इज ए थिक फिलामेंट एंड एक्टिन इज ए थिन फिलामेंट। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि विच वन इज द थिक फिलामेंट, तो योर आंसर विल बी मायोसिन, एंड फॉर थिन फिलामेंट योर आंसर विल बी एक्टिन। ठीक है, तो 4 फिलामेंट, 5 फिलामेंट, 6 फिलामेंट एंड 5 ट्रोपोमाइसिन मॉलिक्यूल। अच्छा जो माइसिन जो एक्टिन होता है, एक्टिन में और भी होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन भी होता है। तो हम जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आंसर करें आप। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाई, जो मायोसिन फिलामेंट है, एक मायोसिन फिलामेंट कितने एक्टिन फिलामेंट से घिरा हुआ होता है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसमें और भी आता है, इसके साथ साथ ही मैं बताता चलूं, जो मायोसिन फिलामेंट होता है उस पे हेड्स नहीं होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स पे क्या होते हैं, हेड होते हैं जो कपलिंग फोर्स का काम करते हैं, और उन्हीं की वजह से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कैल्शियम रिलीज होता है और पोटेशियम की हेल्प से वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप फैक्ट देख लीजिए, ये इस तरह से कुछ होता है। देखिए ये आपका मायोसिन फिलामेंट है और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जो थिन फिलामेंट होते हैं, जो थे 6 जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो इसको घेर के रखते हैं। अच्छा ये जो है एक स्लाइडिंग फिलामेंट दे दिया है, इस फिलामेंट में क्या क्या चीजें होती है ये दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, और इधर उधर ये थिक फिलामेंट जो दिख रहा है वो मायोसिन फिलामेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें ए बैंड पूछता है, एम लाइन पूछता है, एम लाइन जो है वो किस फिलामेंट में होगी, तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए। मैंने एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट तो आपको बता दिया कि इसमें कौन सा एक्टिन फिलामेंट है कौन सा मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि मायोसिन फिलामेंट जो है वो ओनली किस फिलामेंट में होता है। जेड लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, आई बैंड को आपको एक्सप्लेन करना है कि आई बैंड जो है वो किस फिलामेंट को कन्वर्ट करता है, ए बैंड आपको डिस्क्राइब करना है, और जेड एच एम। अच्छा एच एक और होता है एच जोन, वो इसमें दिया हुआ नहीं है, एच जोन भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद एच। ठीक है, ओके वेरी नाइस। ठीक है, सो नाउ इट्स ओवर फॉर दिस वन, वी विल गो फॉर, हाँ यहाँ थोड़ा सा कपलिंग फोर्स से देख लीजिए, ये स्टेजेस के नाम मैंने नहीं लिखे हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इनके नाम जो है वो लिख के बताना है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है और ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, इसमें सब आपको ये दिखाई देगा, चाहे एक्टिन फिलामेंट हो, मायोसिन फिलामेंट हो, ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन, इसमें सारे दिए हुए हैं। अच्छा आप और कुछ कर सकते हैं, और अगर ज्यादा अच्छा आंसर दे सकते हैं तो आपको ये करना है कि ये सारे फिलामेंट जो हैं इसमें, ठीक है, एटीपी एडीपी, मतलब कुल मिला के स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको छोटे से वर्ड्स में लिख देनी है कमेंट्स बॉक्स में। और सही थ्योरी जो जिसकी थ्योरी बहुत अच्छी रहेगी, नेक्स्ट जो क्लास लेगा मैं उसका नाम जरूर मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो आई होप दैट योर आंसर विल मेक मी हैप्पी। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, द थ्रेशोल्ड ऑफ न्यूट्रल एक्साइटेशन। चलिए 11 MB, 9 MB, 12 MB और 10 MB।
select the correct option of the threshold of neutral excitation. एक्चुअली ये नेट के पेपर में ऐसे ही दिया हुआ है, तो मैंने इसके ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया है. I didn't touch the options, but the none of above the answer is correct. इनमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें 11 MB दिया हुआ है आंसर्स. ठीक है, अब मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ कि करेक्ट आंसर और मतलब ये थ्रेशोल्ड और एक्साइटेशन जो है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से होता है, वो मैं आपको इसकी पूरी जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा. सो होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल डू करेक्ट द आंसर. द लेवल ऑफ डीपोलराइजेशन. अच्छा, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन क्या होता है? इसमें दो पोल्स होते हैं. ठीक है, दो पोल्स, दे आर टू पोल्स, दे आर जम्बल्ड विद ईच अदर विद अ force. Okay, and if we provide an input of another force, then the poles will separate it. That is called depolarization. Okay, we must reach for the action potential to occur in most of the neuron. That the throsh most of the neurons के लिए threshold कितना होता है आपका, वो आप यहाँ पे देख लीजिए, -55 millivolt to -65 millivolt. Okay, for action potential, a rapid depolarization and slight reversal of usual membrane of polarization. चलिए अब इसको देखिए आप कैसे तरह से ये होता है. ठीक है, हाँ बेटा बहुत अच्छे. चलिए, तो ये क्या दिया हुआ है आपको, मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया हुआ है मिली वोल्ट में. ये टाइम दिया हुआ है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और आपका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है पहले माइनस में 75 था, और 75 से हम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, फिर हम क्या करते हैं, तो मतलब टाइम बढ़ने पर कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, then what we will do increase the potential at very first stage. If we are giving the potential of minus 75 millivolt, then nothing will happen by the time increase. But if we will start to increase the membrane potential, then what will happen at 55, at the 55 millivolt, minus 55 millivolt, the threshold excitation, after threshold excitation, what will it will break out the membrane and it will walk like this. फिर ये एक्शन पोटेंशियल आपका बढ़ता चला जाएगा और पीक पॉइंट कहाँ पे आता है आपका, 30 मिली वोल्ट पे. 30 मिली वोल्ट से ज्यादा आप दे देंगे तो ये इसको बस्ट कर देगा, फिर दोबारा से ये रीपोलराइजेशन की कंडीशन है, फिर दोबारा से नीचे आता जाएगा और फिर हाइपर पोलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा. ठीक है, और इसकी फोर्थ और फिफ्थ स्टेज जो है वो इस तरह से आप देख लीजिए. ठीक है, चलिए आप इसको भी देख लीजिए, ये होता कहाँ पे है. ये मोस्टली, ये बस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये न्यूरॉन्स, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होते हैं मोस्टली वहीं पे इस तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि जो हम सिग्नल्स लेते हैं वो सिग्नल्स जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही आते हैं. और आपके लिए और एक और काम ये है कि आप EPSPS और IPSPS, ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए कि किस तरह से रिसेप्टर्स पे ये मिलते हैं सिग्नल्स. एक्चुअली सिग्नल्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू गॉट अ सिग्नल एट योर रिसेप्टर ऑर्गन्स लाइक स्किन. ओके, फ्रॉम देयर द सिग्नल्स विल रिसीव इन फिजिकल फॉर्म, दे विल जस्ट चेंज इनटू द electrical form and chemical form, and chemical form they will move from one neuron to another neuron. Then what happens while they are moving from one neuron to another neuron, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ये फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन ये है आपका, ठीक है, और ये दूसरे न्यूरॉन से यहाँ पे जुड़ रहा है, तो क्या होगा एक्चुअली यहाँ पे गैप रह जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्या बोलते हैं? NMJ. ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब केमिकल फॉर्म में जो आ रहा होता है पूरा मैसेज, उस मैसेज को यहाँ पे केमिकल फॉर्म में ये मूव नहीं कर सकता है यहाँ से. ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में जब यहाँ पहुंचता है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में होता है. फिर ये क्या करता है, यहाँ पे ये केमिकल सिग्नल्स में परिवर्तित हो गए, केमिकल ये ट्रांसमिट हो पाते हैं आराम से यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर NMJ से, और फिर दोबारा जो है यहाँ पे आके ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाता है और फिर दोबारा ये पास करता है इधर की साइड. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे. और इसमें जो केमिकल फॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक पंप फ्रॉम हियर
neurotransmitter receptors are here, so the message from here to here come through the chemical signals. ठीक है, from by changing of electrical signal to chemical signal and chemical signal to again in the form of electrical signals. ये कुछ इस तरह से न्यूरॉन्स का फिगर है, ये न्यूरॉन का, आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, ताकि जब न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप जो है उसको कर पाए। जहां पे न्यूरॉन्स जो है दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं उसको सिनेप्स गैप भी बोलते हैं उसको, तो आप इन सिनेप्स को भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग अ न्यू टिश्यूज एंड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। व्हाट आर, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। सट से आंसर लगाइए, सी इसका हो गया। द न्यू मॉडिफाइड ओलंपिक ओथ वाज टेकन considering some considers changes regarding to the drugs and completing for glory of the team instead of nation in the Olympic Games of. Answers are Sydney Olympic 2000, Athens 2004, Beijing 2008 and London 2012. Do the answer please. आपके पास 3 सेकंड है, जल्दी से आप आंसर करें। चलिए, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी से आंसर करें, ये तो फैक्ट टाइप क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा, सिडनी ओलंपिक में ये न्यू ओथ ली गई थी फॉर ड्रग्स वगैरह की यूज ना करने को लेके, ताकि जो हमारा गेम्स है उसकी स्पिरिट जो है वो बनी रहे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन जो है वो किससे सेक्रेट होता है, लिवर से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पैनक्रियास से, थायराइड से। चलिए करें, आंसर करें, इंसुलिन। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, बाकी सारी ग्लैंड्स को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इसका आंसर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन के सेक्रेशन की बात की जा रही है। लिवर क्या करता है, लिवर आपका क्या करता है, ये फैट का सिंथेसाइजेशन करता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, थायराइड ग्लैंड भी क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, ये इंसुलिन रिलीज नहीं करती है। तो पैनक्रियास क्या है, वो आपकी इंसुलिन रिलीज करती है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में वो इंसुलिन का काम क्या होता है और इंसुलिन कब रिलीज होता है, ये दोनों चीजें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बतानी है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये तो बहुत इजी आंसर है, चलिए आंसर करें आप फटाफट। चलिए चलिए, गुड, वेरी नाइस नाइस नाइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबका आंसर सही है। चलिए, ये तो कक्षा 5 से सब लोग पढ़ रहे हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए, इसमें कौन सा तीर मार लिया आपने, ये वाला क्वेश्चन करें। द सेट पोजीशन ऑफ क्रॉच स्टार्ट, द हिप लाइन एंड द शोल्डर लाइन आर मेंटेन्ड इन फॉलोइंग वे। जो हमारी सेट पोजीशन होती है, एक्चुअली जो सेट पोजीशन होती है, सेट पोजीशन में जो हमारी हिप की पोजीशन है, जो शोल्डर लाइन की पोजीशन है, वो किस तरह से रहेगी, इसमें ऑप्शंस आपके पास हैं। द शोल्डर लाइन इज हायर देन हिप लाइन, जो शोल्डर लाइन हिप लाइन आर एट द सेम लेवल, हिप लाइन इज लोअर देन शोल्डर लाइन, हिप लाइन इज हायर देन शोल्डर लाइन। ठीक है, चलें, तो आपके पास अभी सोचने के लिए वक्त है, आप 3 सेकंड सोचें, फिर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। चलिए, कुछ दिखाता ही हूँ फिर आके आप आंसर करें इधर। चले, तो हम देखते हैं कि पोजीशन, ये 3 पोजीशन है। ऑन योर मार्क की पोजीशन में प्लेस योर फिंगर फुट फोर आर्म लेंथ बिहाइंड टू द स्ट्रेट लाइन, प्लेस योर नीज थ्रो बैक टू द लेग्स ऑन द ग्राउंड लेवल विद योर फ्रंट फुट, प्लेस योर हैंड्स शोल्डर विद द अपार्ट बिहाइंड। तो देखिए आप, यहाँ शोल्डर लाइन और हिप लाइन लगभग जो है वो सेम कंडीशन में रहती है while we are on mark position. Okay, and the shoulder line and hip line are not at the same level. Here just try to look at that the hip line is above than that of shoulder line, like this, कि अगर आप इसको यहाँ एक लाइन खींचना चाहेंगे, then easily you can say that here this is the hip line and what the shoulder line is. Shoulder line is here, but they are very different, right? So this hip line is at higher, okay, and shoulder line at the lower level. And again, in the condition of go, the hip, shoulder and all these lines, they are in same line, like this. Here try to look at that hip, shoulder, each and every line on a straight line 180 degree,
So here the answer will be 180 degree. If somebody is asking you what will be the angle of hip, shoulder and foot line while on go, तो आपको आंसर अपना मिल गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम वापस लौट चलते हैं फिर। सो अब तो आपको आंसर हो गया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरी नाइस, हिप लाइन इज हायर देन शोल्डर लाइन, सो आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन, कोई भी जो वस्तु है उसकी स्थिति, जो स्टेट है, एक पर्टिकुलर स्थिति है, उस स्थिति को चेंज करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, या उसकी स्टेट को चेंज करने वाली एंटिटी को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनर्शिया और मोमेंटम। करें, आप आंसर करें, चलिए करिए करिए, बहुत अच्छे। आप थोड़ा बहुत न्यूटन व्यूटन को भी याद कर लो तब भी आंसर हो जाएगा। मोमेंटम होगा नहीं, F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी इसका आंसर नहीं होगा, वेलोसिटी इसकी आंसर नहीं होगा, वेलोसिटी अपने आप में आप वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है F इक्वल टू ma, और यहाँ से ये सारे जो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। इनर्शिया इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो न्यूटन के किस लॉ में आता है इनर्शिया, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, ठीक है। आप लोग अपने आंसर्स तो काउंट कर रहे हो ना, बाद में आपको स्कोर भेजना है कि कितना स्कोर आपने इस क्वेश्चन पेपर में किया। इसमें 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द टर्म प्ले वे इन एजुकेशन गोज टू। चलिए इसको आप क्वेश्चन को करें, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और खासतौर पर फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए तो ये मजेदार होना भी चाहिए। खेल तरीका, प्ले वे जो एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया वो किसने किया है? नहीं नहीं, ये गलत आंसर आ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हो भाई, उल्टा सीधा मत पढ़ो। हाँ, तो ये कॉल्डवेल क्रू की, ये जॉन डेवे ने नहीं किया था भाई प्लेवे मेथड। किसने, कहाँ से पढ़ लिया आपने? प्लेटो नहीं, प्लेटो तो बिल्कुल नहीं होगा, प्लेटो ने कहाँ प्लेवे मेथड दिया था? कार्डवेल क्रू किसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। द टू मेजर ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स आर डायनामिक्स एंड काइनेटिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। चलिए करें, आप आंसर करें। देखिए मैकेनिक्स अपने आप में किसकी है ब्रांच? ये फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। करें, आंसर करें आप इसका। चलिए, अच्छा चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जो मूवमेंट की ब्रांच होती है, ठीक है, मूवमेंट से एक्चुअली जो मैकेनिक्स आता है, मैकेनिक्स में मूवमेंट होना ही होना होता है। अच्छा, आप थोड़ा सा बस जस्ट अ मिनट थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बैटरी लो, सो मैं थोड़ा सा इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ,